मैंने कहा कि मैं बड़े सारे गेस्ट्स को बुला चुका हूँ. एक गेस्ट जो है वो बिल्कुल मेरे सेम कमरे में हम रहते हैं. उस गेस्ट को मैं अभी तक नहीं बुला सका क्योंकि हमारी एक बहुत खूबसूरत सी 1 साल की बेटी है जो हमें जिंदगी टुकड़ों में जीने मजबूर करती है. मैं यहाँ टुकड़ों तो हमने कुछ टाइम निकाला है और थैंक यू अनम फॉर टेकिंग केयर ऑफ हर फॉर however long she allows you to. तो मैंने कहा कि आप इनसे भी बात करें. तो बताएं जी अपने बारे में, कौन है आप, क्या करती हैं, क्या फ्लो है आपका? मैं आपकी बेगम हूँ. थैंक यू. यही है. बस यही आपकी ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है. So your identity is that. So what about women empowerment and shiz? ठीक है, जब शनायरा अकरम को उसने कह दिया था जी नहीं, मतलब मैं I just started off by saying कि आपकी बेगम, आप जानते तो होंगे. Okay, so one of the identifying factors. It is one of the identifiers, not the only one, but yes. बताइए जी, what do you do? What are you here for? I'm here to talk about things that we talk about at home, but I feel कि ये वो वाली चीज़ें कि मतलब you are my worst critic, you know, so that's something that obviously no one enjoys, having your worst critic living with you 24/7. But I feel कि जो हमारी घर पे बातें होती हैं about things that are related to us, education is one of them, modern relationships, raising a child and all. These are good perspectives to share बाकी लोगों के साथ भी. So we thought it would be nice to have a discussion on screen. So for the record, to my audience, whenever we have a debate, it's not really pretty because we both of us have pretty different strong opinions and also pretty different perspectives and essentially polar opposite perspectives to a single problem. And while that seems very beautiful on paper कि यार अच्छा ठीक है तो हमें ये वाला perspective पता चल जाता है और वो वाला भी, but I think it is just so much disagreement that it takes a certain bit of time to absorb both perspectives with each other and then come to a solution. So our system sort of looks like that. Don't you agree? Yeah, it has always looked like that. Yeah. And but उससे बहुत फायदा तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है. सही है, because even if you remember जब हमने beacon ideal कराया था, so I was the one who just put it on a piece of paper and gave it to Mamvikar and all of that कि मैंने ये कराना है. And एकदम से पीछे I remember कि Jaweria started planning and pavilion round होगा, फलाना होगा, उसके banners, streamers आएंगे, ये और मेरे दिमाग में था ही नहीं. That was not a part of the equation that I had. So that was the first time I saw कि okay, so there's another perspective as well to this. So I think मेरी जिंदगी में structure देने वाली तुम हो और तुम्हारी जिंदगी में chaos देने वाला मैं हूँ. Chaos नहीं, you know when you're बहुत ज़्यादा structured life गुजार रहे होते हो ना, regimented way of life thinking होता है, तो वो जो questioning चाहिए होती है from another person to say कि you are also doing something wrong and you need to reflect about these things, because वो तुम देते हो मुझे. You're constantly criticizing me and that I think, and especially like a lot of people, क्योंकि obviously when you're running an organization and people are very cautious about what they say to you, what they not say to you, बहुत technical हो जाता है. A lot of people don't come and honestly tell me what my problem is. So you have always been that person who has made me reflect on what is wrong with me, you know, and what are things that I need to focus on. So I've really appreciated that. Okay, thank you so much for saying that on camera for the first time. You've never said it before. I said all the time. क्या हो गया? यार अच्छा तो मुझे ये बताओ कि you've spent 8 years in education. I think we have spent 8 years in education. Although it was not my choice, but that is Forced what happened. Into education. Because I hated schools when I went there, and I think now that I look back, being part of a school that's trying to change whatever I hated in school, being part of that process, it feels amazing, to be very honest, and it sort of allows me to sort of not give children जो हमारे पास पढ़ रहे हैं उनको कोई इस तरह का bad experience. So within these 8 years, what have you learned about how children learn? I think overall, like whenever we talk about Edopia, you know, and I've been to quite a few morning shows, kabhi, you know, interviews, idhar udhar.
The thing that happens over there is we only talk about the story, you know, कि कहाँ से start हुआ, क्यों हुआ, क्या कर रहे हैं and all. And I feel like because of that, हम story इतना over and over again बात करते रहते हैं कि जो subtleties of the process, you know, the smaller things within the process, they are not talked about that much. Yeah. And which is why I said, okay, let's do this podcast, but let's do it from this angle. Okay. Because Okay. I have that freedom with you. Also, we've already recorded one podcast that you guys haven't seen. क्योंकि उसमें भी story थी तो we're not going to. Yeah, I don't want to talk about the story anymore. The story is there. It's on the website. You can know what Edopia is. So how do children learn? Like how do you कोई concept समझाना है या कोई देखो चीज़ बहुत सो बेसिकली अगर हम समझे ना बच्चों की मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं ठीक है ना बिकॉज लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट यू ओनली एंगेज इन इफ यू आर मोटिवेटेड टू डू दैट एंड देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल थियरीज द वन दैट रेजोनेट्स विद मी द मोस्ट एंड समथिंग दैट आई लर्नड एट द यूनिवर्सिटी मुझे समझ आती है कि हाँ यू नो आई हैव ऑब्जर्व्ड चिल्ड्रन डू दैट इज ABCM. A stands for autonomy, B stands for belonging, C stands for competence, and M stands for meaning. Okay. किसी भी एजुकेशनल सेटिंग में इनमें से एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा ना तो you'd start seeing that the children are losing motivation to learn. Okay. ठीक है. Autonomy is having control over what they're learning. Okay. Belonging is can they connect with the people that they're learning from and with, you know, their peers, their teachers. Okay. C is how competent they feel at the process. ठीक है कि क्या उनकी zone of proximal development के अंदर है, is it challenging enough, you know, is it boring, is it beyond their proximal zone of proximal development, and M is meaning, what are we learning for, इसका क्या फ़ायदा होगा, end product क्या है, end product क्या है, मतलब मैं एक assignment कर रहा हूँ आज बैठ के, to what end am I doing this, you know. ये मोटिवेशन की जो अप्रोच है दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड लाइक इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल टू चिल्ड्रन. हर इंसान के लिए मोटिवेशन के लिए काफ़ी कोर फैक्टर्स होते हैं चारों ठीक है. लेकिन जब हम बच्चों की तरफ जाते हैं ना तो हम सबसे पहले कहते हैं उन्हें क्या पता है, उन्हें थोड़ी पता है कैसे पढ़ना है वो तो है ही लाउजी. इफ़ यू लेट देम लूज वो तो सिर्फ कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे सारा दिन और टाइम वेस्ट करेंगे. बट ऑनेस्टली एक बच्चा जब टाइम वेस्ट कर भी रहा है ना तो इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से उसका दिल ही नहीं कर रहा पढ़ने को. मे बी दे आर नॉट इक्विप्ड इनफ, दे आर नॉट फीलिंग कॉम्पिटेंट टू बी इन दैट क्लास. उन्हें सब कुछ जिब्रिश लगती है इसलिए दे डोंट वांट टू सिट देयर. और इफ इट्स अ चाइल्ड हु फील्स कि यार मेरे ऊपर सब कुछ आप लाते जा रहे हो, आई डोंट वांट टू स्टडी दिस, यू नो, टू व्हाट एंड आई एम स्टडिंग. सो आई फील लाइक ये बहुत एक कोर प्रिंसिपल है जिसके ऊपर स्कूल्स को डिज़ाइन अपना बनाना चाहिए. यू नो यू जस्ट कांट स्टार्ट विद डिसाइडिंग. अच्छा आप स्कूल खोलने जा रहे हो, पाकिस्तान में क्या होता है, स्कूल खोलने जा रहे हैं, लुक्रेटिव बिजनेस बेहतरीन है, टीचर्स हायर करनी है, सिलेबस डिटर्मिन करना है, सिलेबस हम ऑक्सफोर्ड का उठा लेंगे, कैम्ब्रिज का उठा लेंगे, वहाँ की किताबें लगा लेंगे. लेसन प्लान्स कुछ जो थोड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं उनके आ जाते हैं रीजनल ऑफिस से लेसन प्लान्स बन के कि जी इस पेज को इस तरह पढ़ाना है और इस चैप्टर को इस तरह पढ़ाना है. एंड एवरीथिंग इज़ टॉट टू एग्जामिनेशंस के इवेंचुअली ओ लेवल्स में किस तरह हमने इन बच्चों की तैयारी करानी है कंटेंट वाइज. आई फील दैट्स नॉट नीडेड एनी मोर. Even at Edopia, I feel that, you know, yes, we are teaching children, we are preparing them for O-levels, and because of that, बहुत जगह पे हमें भी content eventually introduce कराना पड़ता है and बच्चों की preparation करानी पड़ती है. But जहाँ पे हमें नहीं कराने की ज़रूरत है and we have that freedom, हम नहीं लाते हैं. I feel like the worst thing that the schools are doing right now is that they're starting with content. Okay. And content is not a thing of the future. Do you want to understand what that means? No. I understand what you mean. I think the core of the it's not just कि जो traditional schools हैं जिन schools में हम गए हैं उनकी reason I mean core के ऊपर वो भी यही चाह रहे होते हैं शायद ठीक है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं and all of that. And to be very honest, we live in a country जिसमें जो public school system है वो non-existent है. So in a way I thank all of the private schools whoever can afford it, मतलब 2000 वाला भी है, 5000 वाला भी है, they're still doing a better job than any government school is right now. पे एक ज़माने में कहते थे कि जी मेरे वालिद साहब वाजी वाह क्या स्कूल थे and होंगे, but मैंने जब से आंख खोली मुझे तो नहीं नज़र आए. मेरा ये सवाल है कि एक ट्रेडिशनल स्कूल ये सब कुछ इसलिए भी तो कह रहा होता है कि क्राउड को कंट्रोल करना है. सो इन एडोपिया यू हैव द लिबर्टी एंड ऑल्सो यूर चार्जिंग above market price for it कि आप 1:8 का रेशो रख सकते हैं and all of that. But जब आप 1:24 पे ले जाओ, 1:30, 50 पे ले जाओ, do you think these things
are possible? Obviously this is something जिसके बारे में हमें क्रिटिसाइज भी सबसे ज़्यादा किया जाता है, फ़ी बहुत ज़्यादा है और यू नो राइटली सो के है भी ज़्यादा, यू नो इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट एवरीवन कैन अफोर्ड. देखो मैं इस चीज़ को ना इस क्वेश्चन के साथ बैटल कर रही हूँ फॉर द पास्ट 8 years कि अगर तो हमने जब तक हम एजुकेशन की डेफिनेशन को नहीं चेंज कर रहे हैं ना, तो हमारे पास ऐसे ही मोर और लेस मॉडल्स आते रहेंगे. ठीक है, जहाँ पर कुछ स्कूल स्टार्ट करते हैं 5,000 की फ़ीस है, जाते जाते 50-60 हज़ार तक जाते हैं. ठीक है, एंड द फोकस इज़ कि हम एक क्लास में जाएं, टीचर हो, किताब हो, किताब के अंदर कंटेंट हो, टीचर एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, चाहे वो 8 हैं या 24 हैं या 50 हैं, उन सबको बिठा कर वो कंटेंट डिलीवर करते हैं. ठीक है, एट एडोपिया हमने बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन की हैं. ठीक है, अबाउट एजुकेशन के बेल्स क्यों होनी है, डेस्क्स क्यों होने हैं, टेक्स्ट बुक्स क्यों लगानी है नहीं लगानी, यू नो यूनिफॉर्म्स क्यों होने हैं, लाइंस में क्यों चलना है, असेंबली कैसे होनी है, बच्चे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना है, यू नेम इट, यू नो फिक्स सीट नहीं होनी चाहिए, बच्चे की मूवमेंट होनी चाहिए, बुलिंग को क्वेश्चन, मतलब बच्चों को वॉइस देना, उनकी वॉइस को रिस्पेक्ट करना, एक पूरा स्केड्यूल बनाना जिसके अंदर यू have the voice of the child planted into the timetable, not something that you'll just by the way here. You know, you have questioned so many things about education, and yet there is always this feeling with me, am I really questioning education even with Edopia? You know, because yes, we do have that structure jahan pe we give a lot of personalized attention to the children. It's still not 1:1, but 1:8, 8 teacher, 1 बच्चा. 8 बच्चे 8 बच्चे 1 टीचर. और उसके बाद से बच्चों को बहुत इंडिविजुअल बहुत फोकस्ड अटेंशन भी मिलती है, एंड वी गेट टू नो आवर चिल्ड्रन मोर. हमारी टीचर्स रिलैक्सड हैं relatively as compared to other schools. They have the liberty to spend the time with children. ठीक है, which makes it obviously salary bill 3 times हो जाता है, प्राइस भी ऊपर चली जाती है and all of that. And इस सब के बाद it just makes me feel कि you know what more can be done with education, जिसमें हम पूरा सिस्टम को क्वेश्चन कर लें. अब I think इसके अंदर एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहूँगा. और कोई भी फील्ड अगर आप उसके बारे में बात करते हो, वैसे वो कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर्स हैं, ऑल ऑफ दैट, व्हेन यू गो टू देम फॉर any sort of advice or consultation or whatever, you respect their skill, you respect their field, you respect their experience, you respect the fact कि उसने कोई ऑफिस लिया हुआ है, वो बैठता है और आप जाते हो तो क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में रिलेटिवली कम होती है. फॉर एग्जाम्पल आप लॉयर के पास, आपको नहीं पता कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट्स क्या हैं क्या नहीं है, क्लियरली नहीं पता, तो आप उसकी ओपिनियन को एक थोड़ा सा लोअर ईगो के साथ आप आके कहते हो कि अच्छा यार ठीक है, कुछ सही कह रहा हूँ. But when it comes to education, when it comes to teachers, when it comes to administrators जो education के अंदर हैं, when it comes to school owners, they're always seen as मतलब education always seen as something which is very easy. हर कोई करा सकता है, but कराना कोई नहीं चाहता, ना घर में ना बाहर. And this creates that problem. और suggestions सबके पास हैं. आप जी फिनलैंड का मॉडल उठा लें, आप नॉर्वे का क्यों नहीं उठा लेते, IB बड़ा अच्छा है, फलाना बड़ा ठीक है. आपने कितना टाइम लगाया उसके ऊपर, कितनी देर रिसर्च की है, और उस रिसर्च को भी छोड़ दो, रिसर्च तो गूगल कर लिया आपने बाथरूम में बैठ के. मेरा ये सवाल है कि आपने कितनी देर उसको प्रैक्टिकली अपना के देखा है अपने बच्चे के साथ, या अपने किसी छोटे सिबलिंग के साथ, या अपने व्हाटएवर किसी पुप्पी के बेटे के साथ लगा के एक कॉन्सेप्ट इट कुड बी पाईग्राफ उसको बनाना सिखा दिया, या ट्रिग्नोमेट्री उसको सिखा दी. कितनी देर आपको लगी है, वो बच्चा कितनी, हैव यू डन एनी सॉर्ट ऑफ, नो. And when you see these people having an opinion about it, like I don't have an opinion about no I'm just being fair, right? I don't have an opinion about, my father is a doctor, I don't have an opinion about कि वो अपना काम किस तरह कर रहे हैं, सही है. I don't have an opinion about कि एक जो है वो एयरफोर्स पायलट अपना काम कैसे कर रहे हैं. तो जब वो कोई कहता है, मैं कहता हूँ यार क्या बात है तुम्हारी, कोई इंजीनियर है, कोई कोडिंग कर लेता है, मैं उसको कहता हूँ यार क्या बात है तुम्हारी. बट जब वो मेरे पास आते हो कहते हैं यार तू ऐसे क्यों नहीं पढ़ा रहा, तू भाई आपने किया है काम, आपने 5 मिनट भी क्लासरूम में कभी जिंदगी में गुजारे हैं टू अंडरस्टैंड. और इतना मुश्किल काम है एक, अब मैं उस दिन भी वो आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो मुझे कहता है कि तो उसका ना मैंने पर्सपेक्टिव चेंज किया एजुकेशन के बारे में. बैठे हुए गपशप मार रहे, तो मैंने उससे कहा यार तुम्हारे कस्टमर्स, ठीक है, उसकी एक खैर व्हाटएवर ही डज,
मैंने कहा तुम्हारे जो कस्टमर्स हैं वो तुमसे प्रोडक्ट लेते हैं और घर चले जाते हैं, ठीक है, या जो भी तुम्हें थोड़ा बहुत कह देते होंगे या तुम्हारा प्रोडक्ट यहाँ नहीं ठीक है टेक में कर रहा है। मैंने इसका कहा मेरा जो कस्टमर है वो ना सिर्फ वो मेरे घर आता है, सही है, वो आके बैठ जाता है, 6 घंटे मैंने उसको एंटरटेन करना है या जो पढ़ाना है सब कुछ, उसकी वेलबींग या मतलब आई एम जस्ट सेइंग उसकी वेलबींग देखनी है, उसको चोट ना लग जाए, उसको बिच्छू ना काट जाए, उसको फलाना, उसको नजला, एक दूसरे से कोई मुक्का ना बढ़ जाए, कोई चीज को डंडा उठा के ना मार दे, कोई सेक्सुअली हरास ना कर दे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हमारे दिमाग में और तुम्हारे दिमाग में हर वक्त वेक अप विद दिस थॉट कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, ठीक है, दुआ करके उठते हैं यार। तो लाइक आई एम नॉट जस्ट सेइंग हम कोई सिंपैथी मांग रहे हैं या सब कुछ कोई ऐसी बात है, आई एम जस्ट सेइंग कि यार रिस्पेक्ट दो। एक तरफ कहते हो कि यार टीचर्स नहीं है, एजुकेशन का इमरजेंसी होनी चाहिए पाकिस्तान में, दूसरी तरफ किसी यूनिवर्सिटी में कोई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है जो टीचर्स बना सके। आप कहते हो टीचर अच्छे नहीं है, हैव यू एवर थॉट अबाउट कि क्यों नहीं है अच्छे? हैव यू थॉट अबाउट कि क्यों नहीं उनको वो स्किल मिल रहा? और हैव यू गॉन टू यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस एंड डिमांडेड फॉर इट कि यार टीचर्स बनाओ भाई? हम उस बारे में बात नहीं करते, हम कहते हैं बजट बढ़ा दो। बजट बढ़ाने से क्या होगा? सैलरीज बढ़ जाएंगी या पेंट के प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगी? व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव अबाउट ऑल? देखो बेसिकली ये है कि एक पॉडकास्ट में मैंने बात सुनी थी एंड इट रेजोनेटेड वेरी वेल विद मी कि जो डिफरेंट ग्लोबल क्राइसिस की इश्यूज आते हैं, बीइंग अ रेफ्यूजी, पॉवर्टी, हेल्थ क्राइसिस, इसी तरह की सिक्योरिटी, मेजर सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड ऑल ऑफ दैट, एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम। बहुत सारे लोगों ने ये बाकी सारे क्राइसिस एक्सपीरियंस नहीं किए होते, ठीक है, लेकिन एवरी वन हैज़ experienced education more or less when they talk about it. Good education, bad education, they have been through education. So they have opinions about it. And it's okay to have opinions about it. But undermining education as a science is something that also gets to me because, you know, I feel like education needs to be respected because it is an art, it is a science, it is something that needs to be done very strategically. It's just not something that you know, start a school and become an educationist. You need to invest. जितना एक डॉक्टर एनर्जी इन्वेस्ट करता है अपनी फील्ड को समझने के लिए, उतना एक एजुकेशनिस्ट को भी करने की ज़रूरत है बिफोर सेइंग कि येस नाउ आई थिंक आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट दैट्स अनदर थिंग। बट ओवरऑल आई फील के येस, आई फील कि देयर इज़ एन एब्सोल्यूट डर्थ इन टर्म्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, वो सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जो लोग अच्छी एजुकेशन डिमांड कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट इवन क्वेश्चनिंग द आइडिया ऑफ एजुकेशन। उनके हिसाब से एजुकेशन ये है कि बच्चा हमारा स्कूल जाता है, वहाँ पे वो कॉपीज़ फिल करता है, लिखना पढ़ना सीखता है, उससे डिग्री मिलती है, इवेंचुअली ग्रेड्स आते हैं, डिग्री मिलती है, वो करियर उसमें आ जाता है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ, आई वुड से 99% ऑफ द कंट्री दिस इज़ एजुकेशन। जिसको कहते हैं ना बेस बन जाए, बेस बनेगी तो फिर बच्चा आगे चलेगा एंड ऑल ऑफ दैट। हम एसेंशली कभी भी एजुकेशन को एबिलिटी टू लर्न से इक्वेट कर ही नहीं रहे होते हैं। एक बच्चे को लर्निंग हाउ टू लर्न आ जाए ये कोई नहीं सोचता, ठीक है, वो ये कहते हैं कि कोई सिखा दे और करा दे। लर्निंग हाउ टू लर्न मैं वैसे सिर्फ एक्सप्लेन कर दूं कि क्योंकि बहुत सारे लोग वही बस वर्ड्स देखते हैं, बट इट्स द फैक्ट कि एक बच्चा खुद कैसे कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई नई स्किल, कोई नई चीज़ सीख सकता है और वो उसकी लॉन्ग टर्म क्या नाम है माइंड मेमोरी में चली जाए वो बात। दिस इज व्हाट लर्निंग लर्निंग हाउ टू लर्न इज एसेंशियली द ओनली काइंड ऑफ लर्निंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद ये जो कंटेंट से मेरी दुश्मनी है ना there's a lot of people in my school also initially you know had a hard time understanding कि इसको क्या मसला है टेक्स्ट बुक्स के साथ, और वो भी मतलब क्योंकि पूरी दुनिया यूज़ करती है, पाकिस्तान में तो यूज़ ही टेक्स्ट बुक करते हैं, इसको क्या इशू है। मेरा मसला ये है कि आप बच्चों को ना कंटेंट ना सिखाएं, आप उनको स्किल सिखा दें, ठीक है। एंड इवेंचुअली जब स्किल स्ट्रॉन्ग होंगे उनके, जैसे if they know how to summarize, if they know how to comprehend, if they know how to predict, if they know how to compare and contrast, if they know how to reflect, if they know how to read for meaning, you know, वो कोई भी content access कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। So it's the focus on learning this skill that, according to you or us, Kelo, is the main skill for the future. Or even the present it is the skill. It is the skill, you know, knowing what to. देखो अब Google की वजह से
ज़िंदगी बहुत डिफरेंट हो चुकी है. आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी जानना है, आपको लाइब्रेरी में नहीं जाना, आपको किसी उस्ताद के पास जाके बैठ के शागिर्दी करने की ज़रूरत नहीं है. आपको मोटी मोटी किताबें खोल के मतलब लोगों का नॉस्टैल्जिया मेरा नहीं है, ठीक है ना, कि डिक्शनरी से लोगों का होता है कि वो हम अल्फ़ाबेट के साथ करते थे. वो प्रीवियस जनरेशन है बाय द वे. वो है, ठीक है, मेरा नहीं है ये नॉस्टैल्जिया या कुछ भी इस तरह नहीं है. आई अप्रिशिएट द कन्वीनियंस ऑफ इट, ठीक है. तो अब आप सीख तो सब कुछ सकते हो. कंटेंट इज समथिंग दैट इज रियली एट द टिप ऑफ योर फिंगर्स. व्हाट टू डू विद दैट कंटेंट, हाउ टू पुट इट टू यूज इन योर लाइफ इज समथिंग दैट एवरी चाइल्ड नीड्स टू नाउ लर्न, ठीक है. एंड इट्स सो माइंड बॉगलिंग फॉर मी जब मैं लोगों से इस बारे में बात करती हूँ कि हम खुद इवन राइट नाउ इन 2022 आर नॉट यूजिंग कंटेंट जो हमने अपनी लाइफ में स्कूल में पढ़ा या कहीं पे भी पढ़ा. हम अपनी पुरानी किताबें अपनी मेमोरी को नहीं जॉसल करते. इफ यू वांट टू फिगर आउट समथिंग, ठीक है, हम इंस्टेंटली गूगल करते हैं. हमारी ज़िंदगी इज़ ऑलरेडी डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन दैट वी हैव हैड, एंड वी आर इमेजिनिंग कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी डिफरेंट नहीं होगी. आई डोंट रीड, आई डोंट राइट, एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई से टू सो मैनी पेरेंट्स कि मैं 2022 में बैठ के आई हैव स्टॉप्ड राइटिंग विद अ पेंसिल और अ पेन. आई ओनली टाइप, राइट. Why are you so worried about the handwriting of your child? Your child is not even going to be a child of this time. Your child is going to be the child of a time that you don't even know what it is going to be. Right? I cannot look at a screen or a book for extended hours. मेरी आँखों में दर्द होता है, मेरे सर में दर्द होता है. मैंने 2 साल की डिग्री की है यूनिवर्सिटी से without reading because I listen to my text. ठीक है. And that works well for me. I have my own systems of organizing my notes. मैं कान में सुन रही होती हूँ. I'm making my notes. 2x पे सुन रही होती हूँ. I have come up with my own mechanisms and tools of making sense of my learning and putting it to use in 2022. और यहाँ पे बच्चे जिन्होंने आज से 20 साल बाद दुनिया में आना है, should we really be so bothered कि उसने ये याद नहीं किया, उसको इसके स्पेलिंग नहीं आए, उसकी राइटिंग कैसी है, उसकी रीडिंग कैसी है. मतलब I think all of this, I think इसका जो I completely understand what you're saying. मैं तो तुम्हें बताऊंगा इससे बहुत ज़्यादा रेडिकल हूँ. I think जो बहुत बड़ा मसला था, एक तो ऑब्वियसली जो O लेवल सिस्टम है और या FSC मैट्रिक सिस्टम है जिसमें अभी तक हम वही तक या उसी लिखना पढ़ने के अंदर ही रह गए हैं. And I think both of these systems at least need to now introduce computers or whatever कि यार भाई अगर किसी का स्किल नहीं है हैंड मेरी बहुत बुरी हैंड राइटिंग थी यार, but I could type well, I could type faster. Reading and writing is not like an indicator of what you know, right? You can know without ever reading. You can know without ever writing as well. देखो हमारे स्कूल में भी ये कराया जाता है. और क्यों कराया जाता है? क्योंकि आगे बच्चों ने O levels करना है. स्कूल के बच्चे भी O levels कर रहे हैं. We want to give those parents जिनका ये desire है, this predictability कि ठीक है आपके बच्चे O levels कर लेंगे. बट अगर आपका बच्चा O level नहीं कर पाया for any reason, क्या fear होने की अब ज़रूरत है? नहीं है. You don't need to fear if your child is not able to complete his O levels or A levels. अगर आप अपने बच्चे के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना टाइम टू हेल्प देम लर्न इन वेज दैट दे फील कंफर्टेबल विद, इन गिविंग देम एक्सपीरियंसेस. एंड एक्सपीरियंसेस सिर्फ फॉरेन ट्रिप से नहीं आते हैं. एक्सपीरियंसेस सिर्फ एक्सपेंसिव एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं. एक्सपीरियंसेस कैन रियली बी जस्ट going out to a park to meet people, observing nature, or just giving. मतलब एक blog मैं follow करती हूँ and mind blown by that woman, Black Mountain and Dragon Rock. So that woman has basically left the society. And she's obviously has her own struggles and everything. She is a very educated, well-versed woman who has left the world as we know it. She's alive. She has left the world as we know it, and she has moved to Hamza with not a toddler, a child now. Okay, homeschooling that child entirely away from all these conveniences. She does have internet, so the child learns a lot from a lot of online classes. रहते किसी हट में, बिजली पानी वगैरह बहुत लिमिटेड है. बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं नेचर में. एंड दैट चाइल्ड इज़ काइंड ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टफ दैट व्हेन आई लुक एट इट आई एम लाइक, ओ माय गॉड, इवन चिल्ड्रन एट द स्कूल आर नॉट डूइंग दैट. सो लर्निंग
basically is about spending time with your child and figuring out your child and learning कि आपका बच्चा कैसे सीख सकता है, आपके बच्चे की क्या स्ट्रेंथ्स है, आपका बच्चा क्या करना चाहता है, किन चीज़ों से पुट ऑफ होता है. एंड ऑनेस्टली ये जो डिबेट है ना कि स्कूल महंगा क्यों, ये महंगा इसलिए बिकॉज हम इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे कि जब तक टीचर्स इतनी नहीं होंगी बच्चा कैसे सीखेगा, बच्चे को क्लास के साथ चलना है, ग्रेड एक्सपेक्टेशंस मीट करनी है, ओ लेवल्स करना है. पेरेंट्स वांट the school to take this entire responsibility for making a child job ready or career ready, and उसकी वजह से there is a cost to it, obviously, because आपको फिर bills पे करने हैं, फिर आपने इतने लोगों को hire करना है, फिर आपने एक certain ratio करनी है, फिर आपने balance बनाना है, extra curriculars, curricular, all of these things keep on adding to it. Campus बड़ा चाहिए, सब कुछ चाहिए, all of these things have a cost. तो अब इसके अंदर एक और जो चीज़ है, यू सेड के हम लोग पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम ये सब कुछ आपको सिखाना है. सो विद योर स्कूल इज़ दैट व्हाट यू ट्राइंग टू डू, लाइक आप आइडेंटिफाई करते हो इंडिविजुअल बच्चे की लर्निंग किस तरह है किस तरह नहीं है, एंड देन यू सॉर्ट ऑफ बिल्ड अप ऑन इट, या लाइक सो मुझे जो हमेशा एक प्रॉब्लम लगती है, नॉट विद द स्कूल बट the expectations that we have is the fact कि obviously ये बच्चे सारे compare होते हैं अपने relatives के बच्चों से कि ओह मैं तो 1 क्लास में पढ़ सकता था, तुम नहीं पढ़ सकते, and all of that, और तुम्हारे कितने नंबर है, तुम्हारे कितने, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करती हैं बिकॉज वी गेट द डिमांड. ऑब्वियसली हमारे ये इन्वेस्टर्स कह लो या कस्टमर्स कह लो या जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनकी वी रिस्पेक्ट देयर, बट मुझे सिर्फ हमेशा ये फील आती रही कि इवन कमिंग टू एन ऑल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम दे स्टिल एक्सपेक्ट कि जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसको थोड़ा सा प्रेपी कर दो, उसमें थोड़े नमक काली मिर्च डाल दो, थोड़ा उसको योग कर दो, ठीक है, उसमें कोई 2-4 स्किल डाल दो, एक वो पियानो के ऊपर 4 चीज़ें बजा ले, एक जगह को स्पोर्ट्स पे जो एक को मेडल ले आए, एंड दैट्स व्हाट देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट अ मॉडर्न स्कूल इज. इज दैट ट्रू? That hurts me. अफसोस होता है कि yes that is true, and I have been, क्योंकि मैं तो थोड़ी हूँ भी ऐसी कि मैं तो बहुत डिफेंड करती रही हूँ इस पूरी चीज़ को कि भाई don't come here if you want just a more privileged traditional school. This is not what we are trying to do over here. And गलती ना कीजिएगा स्कूल में आके if this is not what you want for your children. And alhamdulillah, because of that we did attract a lot of parents who were very radical in their approach to education. Radical, yeah, at least on point with their approach. At least thinking out of the box. Aligned. They were aligned with what we wanted. But having said that, मेरा right now Edopia में जो total bottleneck है ना, जिसकी वजह से I have to give in to so many of these traditional expectations is O levels. Because some parents do have this expectation, या most of them right now do have this expectation कि हमारा बच्चा O levels के लिए तैयार हो जाए. तो उसकी वजह से हमें भी मतलब we have to introduce subjects. Although Edopia में like we don't have literacy, science and social sciences as a subject, हमें project subject होता है, maths होता है, Islamabad होता है, which is like more of a way of life than just a textbook, flipping pages and memorizing facts and figures. So we do have these subjects at the school. Then we have electives, and then we have democratic assemblies and committee time. So अभी Edopia में हो ये रहा है कि Edopia में ना we have a very supportive learning environment in terms of meeting those expectations for O levels as well, जहाँ पे 8 बच्चों पर एक टीचर्स को co-teachers मिले हुए हैं, उनको प्लानिंग टाइम मिल रहा है, they are able to teach through मतलब स्किल्स को फ्रेमवर्क के थ्रू वो टीच कर पा रहे हैं rather than focusing on content, and we're also preparing them for O levels and all of that. And साथ साथ बहुत ज़्यादा strong culture है of talking to children, like बहुत ज़्यादा बात होती है बच्चों से in the corridors, इधर उधर, बच्चों के opinions को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने की कोशिश की जाती है. And बहुत ज़्यादा उनसे ना like it has like a very strong community vibe. कभी भी आपको corridors खामोश नहीं मिलते हैं because it's always brimming with energy and conversation, which I feel is absolutely important for any school to have. Schools should not have pin drop silence in their corridors. Schools should have happy children talking to each other, playing. Edopia is also a street. बिकॉज आजकल के बच्चे शामों को घरों से बाहर नहीं खेल रहे होते, तो हमने उस चीज़ को अकोमोडेट करने के लिए भी
अपने टाइम टेबल में ऐसे स्लॉट्स रखे हैं कि बच्चे खेलें जो उनका दिल करता है. दे वांट टू डू लाइक रोल प्ले वाली वो जो गेम्स होती हैं, इमेजिनरी प्ले वाली, वो खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रॉस एजेस खेलना चाहते हैं. वी लेट देम बी, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दैट एक्सपोजर एट होम. सो वी वांट देम, देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ फोकस ऑन वेल बीइंग एट द स्कूल. बट जो चीज़ मिसिंग है ना अभी, वो ये है कि एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी ऑफ लर्निंग अभी भी बच्चे के हाथ में 100% नहीं है. काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इलेक्टिव्स हैं जिसके अंदर दे आर एबल टू मेक चॉइसेस. LSE वीक्स आते हैं जिसके अंदर दे आर एबल टू हैव लाइक फ्री इंक्वायरी एट टाइम्स. और I'm going to talk about LSE weeks. Yeah, so इस तरह की चीज़ें आती हैं. बट लाइक व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश मैथ की क्लासेस, देयर इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ लाइक अ मिक्स ऑफ टॉप डाउन content, top-down instruction, and then in some places like project, the children also have their personal inquiries that go along with that. But teachers do determine class 1 and above कि क्या पढ़ाना है. उससे पहले जो है obviously preschool में it's absolutely like no top-down instruction, but आहिस्ता आहिस्ता for like first 1 till 8 there is like top-down instruction, which gets to me a little because I've seen another side of children that I'm so excited about at all times, and I just want that to now coming to Okay, so एक चीज़ है कि so LSE weeks मैं तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो आप खुद एक्सप्लेन करोगे. लेकिन दो मेरे क्वेश्चंस हैं जो तुमने अभी तक कॉन्वर्सेशन किए. एक नंबर 1 मेरा क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट एज आर चिल्ड्रन रेडी टू टेक ऑटोनॉमी ऑफ देयर लर्निंग? बिकॉज आई सी इट इन चिल्ड्रन के वो कुछ छोटे बच्चे जो होते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से 6-7 साल का बच्चा इज नॉट रेडी, ठीक है, टू टेक डिसीजंस इनटू देयर ओन हैंड्स. मे बी अगर आप उसको बचपन से सिखा रहे हो कि यार आप डिसीजन मेकर हो या आपने मतलब ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आपने क्या पढ़ना है, तो मे बी हो सके. लेकिन जो हमारे पास आते हैं, जो जनरल पाकिस्तानी पेरेंटिंग के अंदर से निकल के आते हैं बच्चे, वो किस एज पे रेडी होते हैं? दैट्स माई फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि क्या ये लोग जब इंग्लिश और मैथ और ये जो टॉप डाउन लर्निंग हुआ है उसमें डू दे एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली कि यार ये चीज़ एक नेसेसरी है, बेशक ये एंटरटेनिंग नहीं होगी या बेशक ये उतनी एंथ्रॉलिंग नहीं होगी देन परहैप्स लर्निंग अबाउट माइनक्राफ्ट और लर्निंग अबाउट रोब्लॉक्स और व्हाटएवर. ये इनका क्या आंसर है? अच्छा देखो, LSE वीक से स्टार्ट करते हैं. LSE वीक्स हमने सेकेंड ईयर ऑफ एडोपिया में इंट्रोड्यूस करा दिए थे. एंड मुझे होता था कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा करिकुलर बच्चे को कराना है, कोई भी स्किल कराना है, शुड बी लिप सर्विस कि जी हमारी चाइनीज़ क्लास हो रही है. 2 दफ़ा हफ्ते में आपकी शक्ल देख लें और चाइनीज़ क्लास हो रही है, कोई इमर्सिव एक्सपीरियंस ना हो. सो वहाँ से आई डिसाइडेड कि जब भी हमने कोई इस तरह का रियल लाइफ वर्दी स्किल सिखाना है तो हम थोड़ा सा ना अपने बाकी टाइम टेबल को ब्लॉक कर दिया करेंगे. उस टाइम पे विल नॉट हैव एनी क्लासेस एंड विल हैव लाइक एन इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग दैट स्किल. सो हम स्कूल में फॉर इंस्टेंस वी आर डूइंग फिल्म मेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, गेम डिज़ाइन, एनीथिंग अलॉन्ग दीज लाइन्स. तो हम एक आध हफ्ते के लिए वी डोंट डू एनीथिंग एल्स, वी जस्ट फोकस ऑन डूइंग दोज थिंग्स. सो वन ऑफ द very popular LSE weeks that we have had in the past is free inquiry, which is basically a time जहाँ पे the children choose what they want to learn and they are given this time. एक हफ्ता ही अभी तक हम लोगों ने टेस्ट किया हुआ है. and उसके अंदर they basically have mentors. Each group has a mentor, like each not exactly group because कुछ group में होती हैं, कुछ individual होती हैं, but a certain number of students have a mentor. एंड उस मेंटर के साथ ना वो अपनी गोल सेटिंग करते हैं, अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, अपनी रिसोर्सेज वगैरह डिसाइड करते हैं कि अच्छा हमें ये स्पेसिफिक स्किल सीखने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे. अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, स्केड्यूल करते हैं, एंड देन दे एवरी डे दे कीप ऑन टचिंग बेस विद देयर मेंटर टू सी कि वो किस तरह प्रोग्रेस करें. ओके, अब मेरा इस पे एक सवाल है कि जब LSE वीक फ्री इंक्वायरी वाला आता है, ठीक है, तो मंडे से तो शुरू होता है, राइट? सो द प्लानिंग बिट इट हैपेंस अ वीक अर्लियर. एंड दूसरी मेरी एक चीज़ ये थी कि बच्चे डिफरेंट एजेस के करते हैं. व्हाट इज द एज ग्रुप? नो, आई एम गोइंग टू गेट टू दैट. नो, सो उसके अंदर मेरा सिर्फ क्वेश्चन जो है वो ये है कि कितनी खुशी से या कितनी मोटिवेशन से कह लो वो अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं. बहुत खुशी से. सो बेसिकली होता है कि पहले मैं तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन आंसर कर देती हूँ, फिर मैं प्री इंक्वायरी के बाद. देखो, मेरे हिसाब से जो 3 से 5 साल तक के बच्चे को एकेडमिक लर्निंग कराना क्रिमिनल है.
हम नहीं कराते हैं और फॉर अ रीज़न नहीं कराते हैं. बहुत बच्चे कहते हैं स्कूल पेरेंट्स को होते हैं बेस नहीं बनाते, दूसरे स्कूल में जाते हैं तो टेस्ट नहीं क्लियर होगा ग्रेड 1 में. नाउ इट्स ओके. मुझे पता है कि जो बच्चे को आप 3 साल उसकी स्पिरिट ब्रेक करके टेबल पे बिठा के, 3 साल के बच्चे की बात कर रही हूँ, ठीक है, वर्कशीट कराओगे, होमवर्क कराओगे, फोनिक्स कराओगे, वो कर लेगा. बच्चे इवेंचुअली यू आर एबल टू ब्रेक देयर स्पिरिट. बट वही बच्चा जिसने रो के 6 महीने में वो फोनिक्स याद किए हैं, जो भी उसमें कॉम्पिटेंस गेन की है, वो बच्चा जब 5-6 साल का होगा वही चीज़ वो तकरीबन 1-2 महीने में लर्न कर लेगा. देयर एबिलिटी टू लर्न improves as they grow up. So you don't really need to make them go through this entire process of learning, of sitting on table, chair, follow instructions, walk in a line, train bana ke chalo and all of that. These are all control mechanisms. These are ways that a teacher wants to control the children in her class ताकि chaos ना मचे. ठीक है. So we don't do that. So at Edopia, first 3 years of life, the children really are just playing with each other, and the teachers are facilitating their inquiries. They're talking to them. They're building on their interests, and they're giving them suggestions on how we can take it forward. And that's brilliant. Works well for us. हमारे बच्चे जब around class 1 में आते हैं, age 6 and 7, they're a lot more willing to sit down. Able to sit down, able to understand why they're being made to sit down. उनके साथ हम जब reading, writing, maths, all of these subjects are introduced for the first time, तो वो ज़्यादा receptive भी होते हैं. I feel वो जो 3 years होते हैं ना, 6, 7, 8, these are the years जहाँ पे do focus on their literacy in a more systematic manner. Teach them through phonics या whatever language approach that you're using, but teaching them how to read is going to be a technical skill. It's not just. It can happen by the way as well. With experience, बच्चे by the way भी read करना आहिस्ता सीख जाते हैं if they have enough exposure. But it's good to take the systematic route. ठीक है, बच्चा read करना सीख जाए, basic understanding. क्योंकि content का access भी तो चाहिए ना. Access ही reading से अगर. That's a different thing because there are other ways to access content, but yes, one of the primary ways in the world will remain कि आप read कर सको और आप उस content को access कर सको, तो वो उनकी वो foundation उस तरह build हो जाती है. And obviously थोड़ी maturity आना शुरू हो जाती है, उनके ideas ज़्यादा develop होना शुरू होते हैं इस time पर. So एक free inquiry approach के लिए बच्चा तकरीबन I would say 8 साल की उम्र तक, 3 around 3 तक काफ़ी इक्विप हो जाता है. कुछ बच्चों से पहले भी हो सकते हैं. एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, बट आई थिंक द प्री रिक्विजिट वुड बी कि थोड़ा बहुत रीडिंग राइटिंग से वो इक्विप हो जाए. बट अगेन आई हैव सीन पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों पे बहुत डिफरेंटली वर्क करते हैं और उनका 6-7 साल का बच्चा भी बड़ी अच्छी फ्री इंक्वायरी कर सकता है. सो थोड़ी सी आप समझो कि एक फ्री इंक्वायरी अप्रोच चल रही है प्री स्कूल में. थोड़ा सा स्लाइट सा गैप आया, थोड़ा सा उनको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स डेवलप करने का. फिर 8 onward दे आर प्रिटी रेडी फॉर फ्री इंक्वायरी एज वेल. आवर स्कूल चिल्ड्रन हैव डन फ्री इंक्वायरी एट 8 एज वेल. सो फ्री इंक्वायरी में फिर ये होता है कि एक बच्चे से कहो ना ये कर लो, गो एंड लर्न अबाउट गेमिंग. इट्स इंटिमिडेटिंग इवन फॉर एन एडल्ट टू गेट दैट गोल. Learn how to do gaming or programming. These are big goals. So you have to really make them smart. You have to make them specific. You have to make them actionable. You have to make them measurable and all of that. So हमारे फिर mentors की responsibility free inquiry में होती है कि making sure that children ask very specific questions. Ask specific questions to set up their specific goal. ठीक है, फिर they figure out how to get to that goal and eventually they present what they have learned. Okay. ठीक है. And हम लोगों ने जब भी ये फ्री इंक्वायरी किया, माइंड बॉगलिंग थिंग्स दैट चिल्ड्रन कोई नई ऐप सीख कर आते हैं. जैसे प्रोक्रिएट पे एक दफ़ा एक बच्ची ने किया, किसी ने फर्स्ट पर्सन शूटर गेम बनाई. बहुत ज़्यादा बच्चे माइनक्राफ्ट पे भी चीज़ें बनाते हैं. हम बहुत अंडरमाइन करते हैं ना स्क्रीन पे क्या चल रहा है, कंप्यूटर्स पे क्या चल रहा है. इट्स अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन आउट देयर. रोब्लॉक्स इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन आउट देयर. माइनक्राफ्ट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन. वहाँ पे चीज़ें, कुछ बच्चों ने पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने का कहा कि वी आर गोइंग टू प्रोब इनटू दैट. किसी ने कोई आर्ट प्रोजेक्ट, किसी ने कहा मैं स्टॉप मोशन सीखूंगा, किसी ने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट उठाया. एक मेरे पास बच्चा था, उसने इमॉर्टल जेलीफिश के ऊपर रिसर्च की थी, लाइक इन वन ऑफ द फर्स्ट ईयर्स. माशाल्लाह नाउ इज इन ऑलमोस्ट हेडिंग ऑफ टू यूनिवर्सिटी. बट
things that children care about, they want to learn about it. और वही skills है जो कि आप स्कूल में भी सिखाओगे उन्हें, how to read, how to write, how to access information, how to summarize information, how to synthesize information, how to connect ideas, how to come and present your thing. But the only thing is that they're not reading or writing what you want them to read and write. They're reading and writing about things that matter to them, and they're putting up a case for them. अगर parents radical enough हो to adopt this kind of an approach to learning, where they understand the conveniences of technology in this time, and at the same time, I'm not saying give up on English and maths altogether. There are new ways to do English and maths, and there are more self-directed ways to do English and math now in this time and age. So you keep English and math as well. लेकिन वो बच्चा जो 8 साल की उम्र से हर महीने डिसाइड करता है कि मैंने आज क्या, इस महीने क्या सीखना है, वो करता रहता है. They get the time, they get the space, they get the support to learn what they want to learn. Imagine what that child would look like in O levels. By the time would they even need O levels? I think they might even attempt O levels at an and age. They can, you know, they what if the goal is I want to do O levels now? You know, कि मैंने ये सब कुछ कर लिया है. Now I feel ready for O levels. And I want to do 2 subjects at a time. ठीक है, let's go ahead, because O levels is हमने हवा बनाया हुआ है. O levels हवा तो नहीं है. O levels is a very systematic and rather underwhelming aspect of our lives. घर पे बैठ के आप O levels कर सकते हो ना, प्राइवेट दे सकते हो, इतना आसान है. ये पेपर है, इसका ये पेपर पैटर्न है, इसके ये पास पेपर्स हैं, इस तरह अटैम्प्ट करना है, ये मार्क्स आएंगे, क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं. तो जैसे CSS हो या O levels हो, ये सारे यही हैं, पास पेपर जितने करोगे उतना अच्छा आ जाएगा. So this child can also do O levels. So I think what we're talking about is approach to learning more than learning itself. And मुझे तो बहुत ही एक्साइट करता है आइडिया ऑफ अ फ्री इंक्वायरी. मतलब इवन अगर आई थिंक एडल्ट्स के लिए होना चाहिए कि you know you have a free inquiry, you want to share it with your whatever or work in a team in that way. और काम में भी हम यही कह रहे होते हैं यार कि एडोपिया में this is exactly what we're doing. हम कहते हैं ओए ये मॉडल अच्छा लगा, चल इसके बारे में बात करते हैं. We sit together, we research our assets. Adult life is all about free inquiry. It's all about और क्या सीखना है और क्या करना है. यार मैं तो पॉडकास्ट के जैसे अगर ये मैंने पॉडकास्ट सेटअप जो है वो मैंने it took me 1 month. It was an inquiry project. Exactly, it was an inquiry project. मैंने कहा यार ये करना है, ये इक्विपमेंट चाहिए, फलाना करना है, मेरे पास पैसे कितने, मैं से क्या चीज़ें ले सकता हूँ, क्या चीज़ें नहीं ले सकता. लोगों को मेरे बैकग्राउंड से बहुत मसला है यार, अभी नहीं मैं कर सकता. But the thing is कि all my life I think it is essentially free inquiry. कि यार अच्छा ये चीज़ मुझे पसंद आई है, अच्छा यार मैंने गेमिंग सीखनी है, अच्छा यार ठीक है. इवन और ये गेमिंग आपको सिखाती है. जब आप गेमिंग शुरू करते हो ना, कोई भी गेम, तुम तो नहीं इतनी करती, मैं तो करता हूँ, उसके अंदर ये होता है कि दे ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद वेरी स्मॉल स्टेप्स, राइट. दे डोंट गिव यू द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हेन यू स्टार्ट, राइट. वो थोड़ा सा ताकि आपको गेम के मैकेनिक्स समझ आए, ताकि आपको समझ आए कि आपने ब्लॉक कब करना है, आपने पैरी कब करना है, आपने जो है वो शॉट कब मारनी है, व्हाटएवर. And then slowly and gradually they build up on it slowly. कि अच्छा अब थोड़े से ज़्यादा difficult enemies आएंगे, अब और difficult enemies and so on. And this is exactly the case of free inquiry. Do you think that you and I are radical enough to? I am. Jaza will go in a free inquiry setup. So do you think that you can introduce something like this? I've been thinking about it, yes, because like maybe pre-COVID I would not have been so determined to go ahead with this, but after COVID and after looking at the tools that we have been given in this world and trained and everything, I feel like it's so doable. It's absolutely doable now. And I think the word that the better word for it, because हम free inquiry इसलिए कहते थे ना, because that was the name of our LSE week, but this is self-directed learning, right? So the better way to phrase it is self-directed learning, where you're not when your learning goals are not determined by an adult, a teacher, or just the group that you're sitting with. It's yourself. And imagine, special needs is one area. क्या होता है वहाँ पे? I have met so many children with dyslexia, autism, so many other places. जहाँ पे बच्चा in their own way is perfect. Yeah. ठीक है? The child has their own way of interacting with the world and making sense of the world. They're just not keeping up with the pace of the class. And that is when we struggle and the parents struggle. And parents को होता है बस स्कूल चला जाए, चाहे स्कूल में जाके किसी कोने में बैठ जाए, कोई उससे बात ना कर रहा हो, वो किसी से बात ना कर पा रहा हो, उसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है, चाइनीज़ लग रही हो सब कुछ, बस स्कूल चला जाए. सो अप्रोच जब तक हम अपनी
towards education नहीं change करेंगे, we just can't expect innovative ways of doing education. I also think कि जो मुझे तुम्हारी बातों से अंदाज़ा हो रहा है, it's also the fact that perhaps we are not able to, like you've explained all of this very beautifully right now, but perhaps जो हम messaging देते हैं या perhaps individually parents इतने ready नहीं होते to be honest, but अगर उनको इस तरह present किया जाए केस कि यार देखो भाई listen to me, 8वीं जमात से लेके 8-year-old से लेके till 15, that's about what 6-7 years, 8 years. 8 years में अगर वो हर महीने एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं या चलो कुछ प्रोजेक्ट्स वो 2 महीने काम करेगा, just imagine, and after a while you might not even need us, to be very honest. If you empower children that much, even in a year, वो बच्चा कहेगा ठीक है भाई मुझे नहीं चाहिए mentor. No, and पता है उसके बाद क्या हो सकता है, because I also talked to Sulaiman, Manur, all these children who have done free inquiry. मैंने कहा अच्छा बताओ क्या होगा, if we start doing it, तुम लोगों के क्या challenge है? Like what if we get bored of the freedom as well, हो सकता है कि we get so tired of thinking, because बच्चे भी कभी कभी कहते हैं कि ऐसा कोई करा दे, सही है, हम बता दें हमने क्या पढ़ना है हम पढ़ लेंगे, हमें खुद effort नहीं करनी. So they said, what if we get tired of thinking about what is it that we want to learn as well. So it doesn't need to happen in a vacuum as such. It needs to happen within the structure of a wholesome social life, community life going on alongside. There are certain things that can still be done top down, not with the intent of only preparing children for exam. For instance, हमारी deen class है, that it's okay to have like a top down, not top down, like a teacher directed discussion about certain things. So मतलब free inquiry in combination with some of other structures is something that can lead to a very wholesome learning experience. मेरे दिमाग में तो co-working space for children आती है ना. अच्छा, मेरा इसके पे थोड़ा सा जो तुमने अभी बात की है, जो उसने उन बच्चों ने कहा है ना कि हम बोर हो जाएंगे whatever, तो ब्रो फिर तुम्हारा इतना ही था ना, एज इन के इवन फॉर यू एंड मी, हम भी बोर हो के क्विट तो करते हैं. नहीं नॉट जस्ट क्विटिंग, लाइक अगर ठीक है, इफ आई नो, तुम्हें पता है मुझे मल्टी स्किल्स आता है, मुझे म्यूजिक भी समझ आता है, मुझे टेक भी समझ आता है, मुझे एजुकेशन भी समझ आती है, बट ठीक है मुझे कोडिंग नहीं समझ आती, सही है, तो मैं उसके बारे में नहीं हूँ बॉदर्ड. मतलब क्या, जैसा वो बच्चा कह रहा है ना कि यार हम बोर हो जाएंगे, तो फिर ठीक है, तो तुमने 10 तो फिर भी सीख लिया ना. It's still better than what you're doing right now. Exactly. What is it that you're doing अभी? And what if going on in through one of these projects you find another skill कि यार ओए अच्छा ये चीज देख लेते हैं. It's just the approach, ठीक है, कि तुम उस learning की तरफ approach अगर एक बार जिंदगी में consistent रहते हो, how do you build towards it? कोई भी goal intimidating लगता है initially, but breaking down that goal into actionable plans is a very important life skill. It's like so amazing. मतलब जैसे याद है जब शुरू किया था Edopia, मैं नहीं सोचती थी उस टाइम पे कि बीकन हाउस भी है, बाकी स्कूल्स भी हैं, रूट्स भी हैं, ऑल ऑफ दीज, मतलब जिनसे हम खुद पढ़े हैं या इस तरह. अब मैं सोचना शुरू कर दूँ वो भी बैठे हुए हैं मार्केट में, फिर क्या होगा ये वो. मैं कहती थी मुझे ना 30 बच्चे चाहिए. आई डोंट केयर कि बाकी दुनिया में कितने बच्चे हैं, स्कूल्स में कितने जाते हैं, मुझे अभी 30 चाहिए. 30 मुझे कैसे मिल जाएंगे, ठीक है. सो दैट वाज अ स्मॉल गोल दैट आई हैड सेट फॉर माई सेल्फ. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि बच्चों को इंशाल्लाह आ जाए. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल टू हैव, क्योंकि एडल्ट लाइफ में तो ब्रो यही सीन सही है. एडल्ट लाइफ स्पेशली द वे वी आर, जो डायरेक्शन दुनिया इस वक्त ले रही है, सही है. अब तुम देखो कि नाना करते हुए बीइंग एजुकेशन, वी नो हाउ टू मैनेज एन इवेंट, ठीक है, वी नो हाउ टू डू आवर फाइनेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट, वी नो हाउ टू एडवर्टाइज, वी नो हाउ टू मार्केट, वी नो सोशल मीडिया. ये सारी चीज़ें कोई तुम्हें वैसे कोई कहते हैं यार स्कूल जाने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप कहते हैं क्या एडमिन सीख लो, प्रिंसिपल, ये सारे स्किल्स, एंड आई एम जस्ट, ये तो भी ऑफ द टॉप माय फिंगर्स, उसके अलावा इतने हैं सही है जो हमने ओवर दिस कोर्स ऑफ, बेशक आई एम सेइंग कि वो उसमें हम किसी में इंटरमीडिएट होंगे, किसी में एक्सपर्ट होंगे, किसी में बिगिनर होंगे, बट वो इंडिविजुअली ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ी हैं साथ साथ, जस्ट बिकॉज ताकि हम, एंड हम अपनी प्रायोरिटी से, हमारी मर्जी है ना, तो हम वो सीखते हैं, तो हमारा दिल भी करता है, हम टाइम भी लगाते हैं, हम रातें भी जागते हैं, बिकॉज इट मैटर्स टू अस, एंड द सेम होल्ड्स फॉर चिल्ड्रन. चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्पेंड टाइम, एनर्जी, एफर्ट, एवरीथिंग इफ द थिंग इज मीनिंगफुल फॉर देम, एंड इफ दे हैव द ऑटोनॉमी टू डू इट. नाउ जो सवाल रह जाता है कि किसके लिए है ये सिस्टम, मैंने और तुमने, तो हम जज़ा को दे देंगे, हम जज़ा को ये देंगे सिस्टम. दाने साहब होते तो वाज़ीन और मेजी के लिए भी लेते. तो मेरे हिसाब से देखो, दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स हु आर थिंकिंग
who are questioning education. This is not for the parents who are just expecting a top down on traditional education. ये traditional education है, ठीक है, और अब आप हमें वही सब कुछ देते जो हमें traditional education में दे रहे, बहुत ही बेहतरीन environment में दे दें, लेकिन हमने टस से मस नहीं होना. जो हमारे रिश्तेदार कह रहे हैं, जो हमारे चचा मामी पुप्पी का बच्चा कर रहा है, हमारे बच्चों को वो भी सब कुछ करना है और ये भी सब कुछ करना है. That cannot work. You know, that's like, that gets to me, you know, कि you then are not really questioning education and the purpose of education. And honestly, कोई radical लोग हों जो इस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहें तो शायद ये इतना महंगा मॉडल भी नहीं है जितना Edopia है, because of all the other things that we have to keep in mind. But are you brave enough for this kind of a thing is what you have to keep in mind. It's not going to be something कि जी एक दफ़ा ये स्टार्ट हो गया, अच्छा अब आप ये भी करा दें, अच्छा ऐसा करें टेक्स्ट बुक्स भी लगा दें, अच्छा ऐसा करें ज़रा राइटिंग भी देख लिया करें इनकी, अच्छा ऐसा करें, you know, it's not going to नहीं. I think इसके अंदर लेकिन जो again मेरा और तुमसे ओपिनियन हमेशा डिफरेंशिएट करेगा. I also think that जैसा बिजनेस में भी बड़ी दफ़ा होता है कि once you bring the product into the market and you explain it in the right way or whatever market in the right way, then people understand that there is a need for it, right? Edopia के केस में भी यही था. When we started, तो मार्केट में लोग कहते थे कि हाँ ट्रेडिशनल सिस्टम में कोई मसला है ये वो, बट देयर वाज नो क्लियर कि वो होगा कैसे. जब एक बंदे ने मैंने मिल के उसको बनाया, ठीक है, तो अब लोगों ने कहा अच्छा यार हाँ देयर इज अ वे, मे बी दिस वे इज नॉट परफेक्ट, मे बी दिस वे lacks whatever, but there is a way. Similarly, when you do the right messaging and you allow people to experience it, वही होगा कि शुरू में कोई पागल से होंगे हमारे टाइप के जो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को कि अच्छा यार ठीक है. इसलिए मैं तुम्हें कहा था कि why don't we have like a small pilot after school sort of a thing, ठीक है, कि 2-3 घंटे आफ्टर स्कूल जहाँ वो और चीज़ों पे लगाते हैं वो इस चीज़ों पे ट्राई कर ले, मे बी 3 days a week, नॉट एवरी डे. एंड जब वो एक बार उसको एक्सपीरियंस करेंगे उनको अपना नज़र आएगा. जब वो बच्चों की एक बार प्रेजेंटेशन देखेंगे, जब उनको लगेगा कि यार इसकी कोई बहुत वैल्यू उनको नज़र आ रही, मे बी ईयर लेटर दे सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इन देयर चाइल्ड कि वो हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है या वो खुद ही पढ़ जाता है एकदम से, उसको कोई चीज़ दिमाग में आती है वो कहता शुरू कर देता है. मे बी देन पीपल विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि इसकी कितनी हो सकता है मे बी लाइक I don't know, maybe 5 years down the lane all schools start looking like that, or 10 years down the lane everyone starts thinking about it. I don't know. I think it has to start with the parents really, you know, questioning why they're sending their children to schools, and for parents to put their anxieties aside, because a lot of parents just project their own anxieties on children. And वो जो एक बात है ना, हमें पता है कि O levels करने के बाद ये होता है, वो बहुत प्रिडिक्टेबल है ना, कि अच्छे ग्रेड्स आएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, बस कहानी ख़त्म हो जाती है वहाँ पर. तो हर किसी की इतनी रिस्क एपेटाइट नहीं होगी. कुछ शायद वो प्रिडिक्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते होंगे, एंड बेहतर है कि ऐसे लोग वहीं पे रहें अभी, यू नो, बिकॉज ऑनेस्टली दिस इज़ समथिंग जो कि इज़ समथिंग, एंड I won't call it कि जी एक्सपेरिमेंट है, because you know then the mindset of people becomes like, oh आपका तो एक्सपेरिमेंट है, हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो you know हम क्यों इसके लिए पैसे दें या जो भी. For me it is like an experiment that you're not doing a favor to me to do this experiment. You're doing a favor to yourself first and foremost to be and part I'm of this doing experiment. You a favor. And I'm perhaps doing you a favor in organizing this experiment, right? Edopia was still not an experiment. Edopia was, since O-levels was always at the end of the mind for us as well, it was very structured, and it was just like a very comfortable working environment for teachers, for students, for parents. It was like a very, I don't know, like 5-star experience kind of. Has been, you know, a 5-star experience in education. This is something radical, you know. And अच्छा, मुझे इतना radical नहीं लगा भाई. मतलब you might think in a full, पेरेंट्स से नहीं मिलते ना. नहीं, I get that. I get that. I'm not saying कि ये वो नहीं होगा, but I think as an after school club sort of a thing. हाँ, initially as a pilot तो it's pretty doable, but for अगर full time school में उसको लेके जाओगे तो वही जो pilot run को देख रहे हैं ना, and वो कोई ऐसे बच्चे से मिले, जैसा अभी भी अगर कोई Edopia के बच्चे से मिलता है ना, even अगर वो बाद में
तो वो उसी कॉन्वर्सेशन को देख के कहते हैं यार तुम किस स्कूल से, तो जब वो एडोपिया कहते हैं तो कहते हैं अच्छा यार ठीक है, मतलब कि कुछ नया है यहाँ पे। बेशक वो अभी हम उसको कोई क्या नाम है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते या किसी टर्म में नहीं ला सकते या किसी स्टैटिस्टिक्स में नहीं ला सकते, ठीक है, बट हम ये जरूर बता सकते हैं कि व्हेन यू मीट वन ऑफ आवर चिल्ड्रन यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस, सम बेटर क्वेश्चंस, सम बेटर थिंकिंग, सम रैशनल बिहाइंड इट, सम वो आपसे जब एंगेज करेंगे तो उनको एक तरीका होगा, सही है। And I think that is where we take pride in as well. We don't take pride in grades. We don't take pride कि वो लाइन में किस तरह चलते हैं, all of that. वो आपका काम है खुद सिखा लें। नहीं क्यों, मतलब लाइन में भी कभी चल ही लेंगे, चलना पड़ा उनको। जब उनको चलना पड़ेगा तो चल लेंगे। यार हमारा भी तो यही सीन नहीं है कि पाकिस्तान में हम नहीं चलते लाइन में और जूं ही हम दुबई में जाते हैं। मतलब देखो लाइन का कॉन्सेप्ट रॉबिन ने मुझे कहा था, he said कि when there is a line then there is an urge to break that line. Yeah. When there is no line, everyone goes to where they have to go. Yeah. They walk there. Yeah. ठीक है. So line is a different thing. As per need, obviously अगर आपने कुछ खाने के लिए लेना है, कोई क्यू है किसी जगह, obviously you're going to respect that. But एक कमरे से दूसरे कमरे में सबने लाइन बना के जाना है, बगैर बात किए it doesn't resonate with me. But yeah, आई थिंक कि होम स्कूलिंग जो फैमिलीज कर रही होती हैं वो मोर लेस कुछ ऐसा ही कर रही होती हैं. तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज फैमिलीज हु डू टेक so much interest in their child's learning and they do it. I think what we are trying to do is we're just trying to make it more structured, so such that we are able to. I think that's our bell. We are done with the podcast because हमारा baby आ गया. Baby आ जाओ. Baby आ गया. आइदा. हाँ जी. Where is Ada? आपने क्या कहना है? हाँ जी. आपने क्या कहना है? ये नजर भी आ रही है. हाँ जी नजर आ रही है. गिल गई है उसकी पोनी. पोनी कहाँ गई जज की? पोनी गिल गई है. जज कहाँ है? वो जज. इधर वापस आ जाओ. वापस आ जाओ. So that was our bell because हमारी बेटी अब बस कर चुकी है. Thank you Anam, thank you Jaweria, and thank you everyone. See you next time. ये कौन है? ये कौन है? अच्छा जजा का है. ये कौन है? जजा का. ये जजी का है. ये जजी का है. ये जजा का है. इधर आ जाओ. आ जाओ जजा. इधर आ जाओ. आ जाओ. इधर आ जाओ. When you're happy and you know. Tap your hands. क्या करना है? वो कहती है उधर दे दो मुझे. क्या चाहिए? खैर मैं बंद कर दूँ. हाँ कर दो.